someone is smiling, they will raise their hands. I just need to check the audibility. So it's audible, right? Okay, thank you, thank you. So good morning, namaskar. I would repeat the things again. Maybe some students did not get in at the time. So we are here from Isha Foundation. Okay, it's an organization based at Coimbatore, Tamil Nadu. And Sadhguru Jagi Vasudev is the master behind it. He's a spiritual master. He's a spiritual master. And so today we are here for an ecological cause, right? And the movement is called Save Soil. It's a global movement going on for the last 70 days. It's a 100 days movement. Okay, so it's going on for the last 70 days. And today must be the 70th day. Okay. So Save Soil movement, have you heard about it? Anyone? Raise your hands. Anyone? Okay, very few. Alright, no issues. Now once I tell you, you'll know about it. And अगर आप लोग घर जाते हैं, if you are not hostless में because media access would be less I believe. And TV में कल Discovery में कल शाम को tomorrow 29. What is the date today? 28 ना हाँ कल शाम को 5 बजे the program the event will be telecasted on Discovery channel as well. So you can watch it there. Because Discovery Plus I forgot. Okay, I need to cross check that. So, Save Soil is a global movement. Now, why Save Soil? Why do we say Save Soil? Now, if I tell you कि soil मिट्टी को बचाना है, you will be pretty confused कि मिट्टी में बचाने लायक क्या है, right? अगर हम लोग बोलते हैं कि soil is getting extinct, everyone understands extinction. Extinction समझ में आता है, okay? So, if I say that soil is getting extinct, you understand that? Soil getting extinct, even when I heard it for the first time, even I was little confused. The soil gets extinct हो सकता है, right? But later on, when I researched about the matter, when I learned more about the matter, then I understood that the problem is really critical, it's severe. Okay, and this is a time if we don't act now, and if we start acting on this crisis, say in the next 20 years, 30 years, right? हम लोग काम करना शुरू करें इसके बारे में, then it will be too late. It will bring lots of suffering along with. So I'll connect some fundamental matters. So firstly, the food that we eat, where does it come from? The vegetables, the fruits that we eat, right? Where does it grow? Trees and plants, very good. Where do the trees and plants grow? Okay, they grow on the soil, right? Now, if the soil health is not good, right, what will happen to the health of the plant? If the food that we eat is not good, what will happen to our health? We will die, we will fall ill, right? We will fall sick, right? Our immunity will be compromised, right? अगर हम लोग जो खाना खाते हैं उसका health अगर सही नहीं होता है. So when we say health in terms of food, we are actually talking about the nutrition content in the food. The vitamins, the minerals, right? Where are we supposed to get them from? हम लोग को minerals और vitamins जो है, we are supposed to get them from the food that we eat, right? लेकिन आज का time में the food that we are eating, right? There is a lot deficient in nutrition, right? Of course, they satisfy our hunger, but that lacks nutrition. And this is the reason whenever we visit a doctor for medical attention, whenever we are suffering from something, along with the medication, some vitamin supplements, minerals supplements are also given. Okay, yes, that is the situation. In the recent pandemic, right, COVID, this was a first time kind of thing, at least for our generation, right? इसके आगे में there were other pandemics also, called as Spanish flu was there, right? So this is something for the first time we got that, yes? तो उसमें डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट क्या दिया? कोविड का तो कोई दवाई नहीं दिया था, right? We were given paracetamol if we had fever, right? Mostly we were asked to boost our immunity with as much as vitamin C possible, with zinc, right? And these were, along with the natural sources, we were also suggested to take supplements, right? Multivitamin, multiminerals का हम लोग को
पिल्स दिया गया, मेडिसिन दिया गया, राइट, इट्स ब्रेकिंग इन बिटवीन। ओके, सो द थिंग इज दैट जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है, दैट इज द रीजन सप्लीमेंट इज गिवन। बट अगेन यू विल नो वन थिंग, आप लोग को पता होगा कि जो फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, बॉडी का एब्जॉर्प्शन बहुत कंफर्टेबल होता है, हाई होता है। जो हम लोग सप्लीमेंट से लेते हैं वो बॉडी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करता है। यस, सो इट इज नॉट वाइज टू हैव विटामिन एंड मिनरल टैबलेट्स। ओके, preferably अगर कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स डजंट मैटर, बट वी आर सपोज्ड टू हैव दोस न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड डायरेक्टली। Now food health is getting compromised, I am saying. Now how is it happening? Now you see, soil getting extinction का मतलब होता है soil turning to sand. ठीक है, soil sand कैसे बनता है? Or we call it soil desertification. Okay, soil desertification. How does soil turn into sand? Soil से जैसे जैसे organic content drop होते जाएगा. Okay, organic content you understand? Everyone understands? Organic content अगर soil से drop होता है, soil starts turning into sand. और sand में अगर आप organic content add करते हो, then over a period of time, ये overnight नहीं होता है, एक रात में नहीं होता है. Over a period of time, in a couple of years, sand will start turning into soil, right? So if more desertification happens, the agriculture will drop, the food that we are growing that will drop, right? और उससे क्या होगा? फूड क्राइसिस विल बी क्रिएटेड ग्लोबली। ठीक है, तो उससे अगर जैसे कि अभी रिसेंटली द इवेंट वाज आल्सो हेल्ड इन दुबई। ओके, सो दे आर ए नेशन, मिडिल ईस्ट, राइट, दे आर टोटली अ डिजर्ट नेशन, है ना? तो मिडिल ईस्ट दे आर टर्निंग सैंड इनटू सॉइल विद दिस मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी क्या है बोलने से, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या है बोलने से, इट इज द बॉडीज, डेड बॉडीज, whatever body it is, animal body, plant body, whatever body it is, human body, doesn't matter, right? It is the dead leaves that fall from the trees, right? It is the animal droppings, the excreta. When they fall on the soil or when they fall on the sand, they enhance the health of the soil. Sand में गिरेगा तो sand will start turning into soil over a period of time. but soil में जब वो गिरता है तब क्या होता है? There are other natural factors responsible, right? That starts turning into soil, healthy soil. Now when we have healthy soil, that will ensure that healthy plants grow on them. When we have healthy plants and trees, that will ensure healthy fruits and vegetables will grow on them. है ना? एक मुट्ठी healthy soil बोलने से, right? एक मुट्ठी healthy soil में ग्लोबली हमारा जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, right? What is our population? Any idea? Rough figure? How many are we around the world? We are 7.8 billion. ठीक है, हमारा नंबर है 7.8 बिलियन. ठीक है, 1 billion is 190, 10 to the power 9. Okay. Now एक मुट्ठी हेल्दी सॉइल में 8 से 10 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एटसेट्रा, वायरसेस, राइट? Now are they good in any way? Yes, they are. In fact, every insect, every bird, every animal, every microorganism, they have a critical role in ecology. In fact, हमारा रोल का बात करो, हमारा रोल सबसे मिनिमम है यहाँ पे. Okay, human beings का रोल सबसे मिनिमम है, और human beings actually सबसे कम important creature है. You will be surprised to know that. We are the least important creature on earth. Talk about honeybees, the most important they are. Because honeybees, they pollinate 80 to 90% of the vegetation. They are the most important. And the way the honeybee population is going down, right? This will impact us. Honeybee आज के डेट में अगर honeybee सब मर जाए in a matter of 6 months, entire human species or all forms of life, not just human species, all forms of life will be wiped away. You can ask me how? Pollination हो रहा है, पूरा vegetation grow हो रहा है all because of 90% बोल रहे हो तो, तो 90% vegetation हो रहा है all because of honeybees, right? अगर honeybees नहीं रहेगा, ये 90% vegetation नहीं होगा. Plants will not grow; they will stop growing, right? So human beings, in terms of contribution, we may have contributed the least, but we are in a position that we can contribute the most by aligning our actions. क्या actions? अगर आप पूछते हो
क्या एक्शंस अभी इंडिविजुअल लेवल में हमें सॉइल डिजर्टिफाई होने से रोकना है, हमें सॉइल इरोजन होने से रोकना है। यू हैव टू एनकरेज मेजर ट्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड। इसका भी there are certain recommendations that will find in savesoil.org, that's the website, or conscious plant. If you follow that, you'll find more about it. So soil health कैसे रिस्टोर करें बोलने से just increase the organic content about 3%. Right? Organic content कैसे increase करें? Animal droppings should follow the soil. आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादा machine farming हो रहा है, right? Machine farming में problem ये है, we are not saying कि machine farming नहीं होना चाहिए, but we are talking about the merits and demerits, right? Animal farming में animal droppings जो होता है वो जमीन पे गिरता है, वो soil का health का enhance करता है, और animal farming aggressive नहीं होता है। Machine farming क्या होता है, वो machine farming aggressive होता है। Aggressive farming में क्या होता है, they are killing the microorganisms that we talked about. माइक्रोऑर्गेनिजम्स अगर सॉइल में मर जाए तो क्या होगा, जो प्लांट को वाइटमिन्स मिनरल्स मिलता है, वाइटमिन्स नहीं सॉरी, जो मिनरल्स मिलता है वो सब कलेक्ट करते हैं कौन, वो सब कलेक्ट करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया फंगाई वो दूर दूर से कलेक्ट करके वो प्लांट को देते हैं, राइट, ट्रीज का रूट को देते हैं। तो रूट्स इन रिटर्न वो क्या देता है, प्लांट इन रिटर्न वो क्या देता है, देयर हैज टू बी अ गिव एंड टेक रिलेशन, राइट। प्लांट्स इन रिटर्न गिव देम ग्लूकोज। This you must have read in your books, right? This is a symbiotic relation we call. It's a win-win situation for both. अगर ये microorganisms का नंबर में ड्रॉप हो जाए या ये सब अगर कम जाए, then these minerals which the microorganisms are collecting for the plants, that will not happen. As a result, the plant health will be great, right? Now this is about the whole thing. Now how it is impacting us? Soil. आज का डेट में सॉइल हेल्थ अगर अच्छा होगा, दिस इज एन आंसर, दिस इज अ सॉल्यूशन टू मेनी ग्लोबल प्रॉब्लम्स। टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन, टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, राइट, व्हाटएवर वी टॉक अबाउट टुडे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू सॉइल। देयर इज मोर कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, ओके, कार्बन इज नॉट रॉन्ग, इट इज जस्ट इन द रॉन्ग प्लेस। कार्बन तो जमीन में रहना चाहिए, राइट, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा कार्बन हवा में आ रहा है। ज्यादा कार्बन हवा में आएगा तो द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब विल इंक्रीज, एंड देयर इज ए सर्टेन टेम्परेचर, 4 साल में 1 डिग्री 1.5 डिग्री ऐसे करके एवरेज में बढ़ना चाहिए, बट द टेम्परेचर इज राइजिंग वेरी रैपिडली। स्पॉन्टेनियस राइज से क्या होगा, द आइस इन द ग्लेशियर्स, ओके, इन द पोलर कैप्स विल मेल्ट डाउन रैपिडली, और उससे कहीं पे फ्लड होगा, राइट, कहीं पे ड्रॉट हो जाएगा, सी लेवल्स विल राइज। दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर अस, ओके। सो वी आर हियर टू टॉक अबाउट व्हाट इट इज अबाउट, ठीक है। तो एक तो हो गया कि सॉइल का हेल्थ को ख्याल रखने के लिए हम लोग इंडिविजुअली वी कैन टेक केयर ऑफ इट बाय डूइंग द साइंस ऑफ इट, बट एज अ जनरेशन इसको कैसे हैंडल किया जाएगा और अपकमिंग जनरेशन सॉइल को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिसीज चाहिए, और पॉलिसीज कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। एंड दैट इज द रीजन एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन वी आर अपीलिंग चिल्ड्रन, इवन द CBSE also has written to all schools, we are appealing children to write letters to the Prime Minister of India, and for other nations also it is happening, they are writing letters to the head of their states। तो आप लेटर में क्या लिखोगे, सेव आवर सॉइल और सेव सॉइल, राइट, बड़ा करके लिखना है, अपना नाम, रोल नंबर, नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल मेंशन करना है, लोकेशन मेंशन करना है। Along with that you can paint something, you can draw something, अर्थ का डायग्राम, अर्थ का डायग्राम है, उससे अर्थ का पिक्चर बना सकते हो, राइट, you can write a poem, write anything, you can add any kind of creativity according to your will। We'll collect the letters on Monday, कल संडे है, you can write it in your homes, right। और मैंने सिस्टर के साथ कुछ सैंपल लेटर्स भी शेयर कर दिए, जस्ट आइडिया ले लेना, लेकिन you can put your own creativity there। We'll collect the letters on Monday and we'll send it to the PM। अभी जो टाइम है हम लोग इसको सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, and after that we'll be getting some certificates। Okay, so regarding this topic, my colleague, okay, so you can ask any questions, he will also respond regarding it। So since he is a biology teacher, okay, regarding the importance of any organisms, whether it be bacteria, fungi or earthworms, okay, it's a very interesting creature, it has lot of contribution in nature, ठीक है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
will come up to you, understand the question, and will respond. Whatever you need. Okay? Thank you. I would like to send food here. The sound was actually breaking continuously in between. I do not know how much I could reach you. आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो you can raise your hand. I'll come up to you to the mic. Anyone? Questions can be anything. Okay. Don't have thoughts in your mind कि ये क्वेश्चन अच्छा होगा, वो होगा. Never ever think that way. Questions है पूछो. Whatever it is. Any questions? Her question is how much nutrition is present in the soil. Actually, that cannot be measured. Okay, जब हम लोग soil बोलते हैं, we are talking about a 3 feet layer surrounding the earth. Okay, the earth's radius is how much? किसी को पता है? 6,400 kilometers. 6,347. Now this will vary. Earth is not exactly a spherical ball, right? Mud ball है, it's made of what is a mud ball, right? It's huge, and the radius is 6,400 kilometers. Like 10, 11, 12 children will be numerical simple example 6.4 into 10 power 6 apply in SI unit. Okay, 6,400 kilometers. So that is huge, right? And in that 6,400 kilometer radius, 3 feet is 36 inches. 3 feet thickness, 3 feet कुछ मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा. तो 1 feet is 12 inch. एक लंबा सा रूलर जो होगा 1 feet होता है, ठीक है, 12 inches. तो 3 feet होता है soil. कहीं पे थोड़ा ज़्यादा, कहीं पे कम होगा. ना 87% जो लाइफ है on earth, वो इधर on soil है, नहीं तो in soil. In soil बोलने से ये 3 feet में ही 87% लाइफ है. Or whatever nutrition, whatever minerals, whatever vitamins we are talking about, right? Now this is a recycle. Natural process एक cycle होता है. Everything that is happening, right? That we are eating. Now हम लोग जब जन्म होते हैं, how big were we? एक छोटा बच्चा कितना बड़ा होता है? इतना सा होता है, right? Now how does the child grow? कैसे बड़ा होता है? By eating food, right? What else? What else? खाना खा के बड़े होते हैं, हवा लेते हैं, air, you cannot ignore that, water, okay, water लेते हैं, right? We consume all this and we grow up, right? तो ये सब आ कहाँ से रहा है? There in one or the other way they are connected to soil, ठीक है? तो जो सब हम लोग खा के the food that we eat and all kind of animals when they go and after a certain period they have to die, they go back to the soil. Right? They mix with the soil, they become soil. ठीक है, तो यही जो पीरियडिक टेबल में जितना एलिमेंट्स पढ़ते हो पीरियडिक टेबल में, यूनिवर्स में वही सब एलिमेंट्स है, सॉइल में वही सब एलिमेंट्स है, हमारा बॉडी में भी वही सब एलिमेंट्स है. कोई थोड़ा ज़्यादा, कोई थोड़ा कम. It is those 118 elements that you read in the periodic table. So nutrition soil को कहाँ से मिल रहा है, कितना है बोलने से yes, it is abundant. लेकिन अगर हम लोग soil को सैंड में कन्वर्ट करते जाए तो क्या होगा? The nutrition will fall dramatically. The soil health will degrade because sand में microorganisms नहीं रहेगा, right? Microorganisms नहीं रहेगा तो वहाँ पे minerals भी sand का जो minerals है वही रह जाएगा. Microorganisms नहीं होगा तो वहाँ पे plant भी grow नहीं होगा. And there is one more thing to it that कोई भी open lands रखना नहीं चाहिए. Maybe we can have trees there, we can have plants there, लेकिन at least और भी bushes या grasses होना चाहिए. Right? This is very much experimental. कि open land अगर रहेगा
तो वहाँ का जो सनलाइट जब गिरता है तो लैंड ओपन लैंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक ग्रीन से भी एक पेज भी रखो ग्रीन पेज में टेम्परेचर सेंस करोगे यू मेजर द टेम्परेचर यू फाइंड ओपन लैंड से टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पे अगर ग्रीन कवर रहेगा जैसे ग्रीन बुशेस और प्लांट्स और व्हाटएवर इसमें टेम्परेचर और कम रहेगा तो सॉइल जितना हीटअप होता है उतना क्या होता है वहाँ से कार्बन जमीन से हवा में आने लगता है और कार्बन जितना हवा में आएगा दैट विल इम्पैक्ट अस इन व्हाट वे दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर आजकल गर्मी ज़्यादा है टेम्परेचर राइजिंग रेस्ट ऑफ इंडिया में गर्मी और ज़्यादा है टेम्परेचर आर क्लोज टू 45-50 डिग्री सेल्सियस right recently it was raining endless in here in Northeast right so the distribution is happening in that manner what we call as climate change कि जहाँ पे बारिश हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे क्या हो रहा है ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होते जा रहा है ऐसा लेवल में so their drought is happening this will create a tremendous imbalance in the earth okay and one day if this thing continues and if you don't take actions then there will be a day where when human species might be terminated totally. So this is the time we have to act. Okay? Thank you. Any more questions? One more question कि डे टू डे लाइफ में हम लोग कर क्या सकते हैं ठीक है तो once you understand anything right तो पहले I would like to ask you one thing हम लोग स्कूल क्यों आते हैं बोलो तो पढ़ के क्या होगा हाँ बड़े होते अच्छा ओके शी इज सेइंग बट ओके कुछ बनेंगे सो आई वुड से कि हम लोग पढ़ते हैं लाइफ को जानने के लिए वी कम टू स्कूल बेसिकली टू अंडरस्टैंड लाइफ राइट टू अंडरस्टैंड रियलिटी ठीक है ना एवरी सब्जेक्ट दैट वी आर रीडिंग इजंट आरंट दे कनेक्टेड टू नेचर आरंट दे कनेक्टेड टू द लाइफ सराउंडिंग अस राइट तो वो सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं when we grab the knowledge from there right what happens हम लोग का स्किल बढ़ता है हम लोग कुछ सीखते हैं हम लोग स्किल बढ़ता है you see when we grow up this job or whatever positions whoever is contributing in whatever capacity right that happens as a consequence our primary attention is to understand life is to learn life okay so सिंस ये प्रॉब्लम भी अगर हम लोग समझते हैं ये प्रॉब्लम भी हमें अगर रियलाइजेशन होता है कि ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है सो व्हाट वी कैन डू डे टू डे लाइफ में यस साउंड रेगुलर आई विल बी यूजिंग द अदर माइक ओके सो डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या कर सकते हैं वी हैव टू एंश्योर दैट ग्रीन कवर रहे ओके लैंड्स आर कवर्ड विद ग्रीन कवर मतलब वहाँ पे कोई ग्रासेस हो या बुशेस हो ये हमें एनकरेज करना चाहिए राइट ना अबाउट डिफोरेस्टेशन यू नो इट नो लाइक डिफोरेस्टेशन हमें डिस्करेज करना चाहिए वो करना है राइट और डे टू डे लाइफ में क्या है ग्रीन कवर जितना बढ़ेगा तो उतना हम लोग कार्बन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे टू नॉट गो इनटू द एयर तो दिस इज समथिंग वी कैन डू और रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स में कुछ रिकमेंडेशन ऐसा है कि वी हैव टू हैव मेजर ट्रीज एग्रीकल्चरल लैंड्स के बीच बीच में मेजर ट्रीज होने से वो पूरा एग्रीकल्चरल लैंड को काफी ज्यादा बेनिफिट करता है इन व्हाट वे ट्रीज जो मेजर ट्रीज जितना पानी लेते हैं जमीन से दे गिव बैक द वाटर into the air right it acts like a fountain you can say तो एक ट्रीज का एक मेजर ट्रीज का सराउंडिंग में क्या होता है the moisture level is high और उससे क्या होगा उससे जहाँ पे रहेगा वहाँ पे शेड्स भी रहेगा ट्रीज से भी जो भी पत्ता गिरेगा उससे क्या होगा उससे सॉइल का हेल्थ एनहांस होगा right so these are something we can do in our day to day life right and outside this I would appeal everyone कि एक पार्ट जो है अवेयरनेस है
हमारा मूवमेंट का दूसरा पार्ट जो है, हमें पॉलिसी मेकिंग में प्रेशर जनरेट करना है। तो पॉलिसी मेकिंग में प्रेशर जनरेट करने के लिए व्हाट वी विल डू इज दैट वी आर आस्किंग यू टू राइट लेटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, आई मस्ट हैव सेड दैट इन द बिगिनिंग। So we will write letters to the Prime Minister of India. Various countries are writing letters to their heads of the state. Okay, and we'll collect the letters by Monday. All right. और सैंपल एज ए सैंपल लेटर मैंने शेयर कर दिया, तो आप लोगों को शायद ये भी जाएगा होगा। तो वहाँ पे सेफ सॉइल लिखिए, नाम लिखिए, क्लास लिखिए, स्कूल लिखिए, एंड योर लोकेशन, एंड यू कैन ऐड योर क्रिएटिविटी देयर, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, थैंक यू। Okay, any more questions? She said what is very practical आज के डेट में, after conducting this kind of awareness events and all, mostly this does not convert into action. ठीक है? But the success what we consider is even a handful of people, एक minimum number. और एक बात fact है कि when you convey something to children, right? इसका efficacy ज़्यादा होता है in comparison to whenever this is conveyed to elderly people. Right. So children को क्या बोलते हैं? Future of the nation बोलते हैं, right? So that is the reason we also interacted with the tiny tots here, with the small children in the previous session, and this is what we are doing in various schools also. So is it worth it बोलने से? देखिए आप लोग अपना लेवल में, मैं इतना ही बोल सकता हूँ as a part of learning process, खाली soil बोल के नहीं है, ecology बोल के नहीं है। Everything that you read when you come to school, right? Realization से आप लोग पढ़ो, realization से पढ़ोगे तो आप लोग उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर पाओगे। लेकिन अगर माथा में खाली एक ही चीज रहता है कि एग्जाम में पास करना है, देखना वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा और सीखोगे भी नहीं, कोई चीज रहता नहीं है, हमारे मेमोरी में रहता नहीं है। When we read for the exams, and when you realize you actually connect with that, whatever subjects we learn doesn't matter. Okay, you can connect with them and you can live by them, and then only you can bring those learnings into actions. Otherwise सीख के अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, कुछ भी हो जाए, राइट? दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, सो ये कितना काम होगा नहीं होगा, आई वुड ओनली रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी आप सीखे और safesoil.org विजिट दिस साइट, देयर इज मोर इनटू इट, राइट? कॉन्शियस प्लैनेट बोल के आप लोग सोशल मीडिया में अगर है या पेरेंट्स का सोशल मीडिया हैंडल्स है, so you can look for conscious planet in those handles, right? Search about that, learn more about that, okay, and bring those things into action. If we don't act now, हमारे लाइफ में ही सफरिंग बढ़ेगा। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी अच्छा लगता है किसी को? Nobody loves nobody loves summer, right? If temperatures start hitting above 40 degrees Celsius, किसी को पसंद नहीं आएगा। Yes? So this is the reason we have to act. हम लोग हो सकते हैं सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट क्रिएचर इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, लेकिन हमारा कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का, राइट? और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का या सबसे ज़्यादा ख्याल रखने का वो हमारा कैपेसिटी है, एंड वी हैव टू एक्सरसाइज दैट, राइट? इससे होगा क्या? इंडिविजुअल लेवल में हमें खुशी मिलेगा, यू विल गेट सैटिस्फैक्शन, यू विल गेट हैप्पीनेस, राइट? सो दैट्स व्हाट आई कैन से टू द क्वेश्चन। Any more questions?
So he asked a very good question. What if all the soil of the earth they start turning into sand? In this process ना ये होने का काफी टेम्परेचर्स विल हिट हाई सीवियरली, कहीं पे फ्लड होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे ड्रॉट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा, वेजिटेशन विल टोटली एंड, राइट। ये लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक रात में सब कुछ हो गया, ठीक है, ये ग्रेजुअली होता है। अभी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का बात अगर करें, यू मस्ट हैव हर्ड केप टाउन साउथ अफ्रीका का कैपिटल, लाइक 2-3 years बैक ग्राउंड वाटर इज टोटली गॉन, ग्राउंड वाटर कंप्लीटली डिप्लीट हो गया। तो दोस पीपल आर डिपेंडिंग ऑन अदर सोर्सेज, लेकिन लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट देयर। हम लोग जहाँ पे रहते हैं अगर ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाता है, ग्राउंड लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। हैव आई टोल्ड अबाउट बीज, हनी बीज? अच्छा, उसके बारे में तो बोला ही है। इवन वेदर यू टॉक अबाउट हनी बीज और ग्रासहोपर्स और कॉकरोचेस इवन, right? Cockroaches most of us hate, but cockroaches are very important in ecology. Nitrogen fixation में help करता है। All right? So ये तो सॉइल को सैंड होना ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये ओवर पीरियड ऑफ 10 years एस्टिमेट किया जा सकता है। अगर ये सैंड बनते गया धीरे धीरे तो देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन सफरिंग, that will follow less food production होगा तो human beings will start fighting with each other, civil war situation हो जाएगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे पानी के लिए। थैंक यू। So you can think about more questions. I'll hand over the mic to my colleague. Okay, he's a biology teacher. और आपको थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्पोर्टेंस या वो उनका रोल थोड़ा बताएंगे। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एक इमेज स्लाइड भी यूज करेंगे पीपीटी। ओके, थैंक यू। Okay, thank you, my colleague Mr. Sudhir Das. So my name is Manna Chandra, and I teach biology in Scholars Institute. So today I am here to tell you about the biological aspects of soil. Because अभी ये जो हम लोग soil को save करो ऐसे हम लोग कैंपेन को कर रहे हैं, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि soil का बायोलॉजी क्या है। बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है कि आर्टवर्म का क्या रोल होता है, मशरूम जो आप लोग खाते हो मार्केट में जो मिलता है ना मशरूम, उसका क्या रोल है, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में जब हम लोग जानेंगे, हम लोग जब अपने आप को अवेयर करेंगे, तब जाके हम लोग दूसरा को अवेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। अब अभी आपको ही कुछ पता नहीं है, हाउ कैन यू लाइक टीच अदर, है कि नहीं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आर्टवर्म का क्या इंपॉर्टेंस, आपको कैसे बोलूँ, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं थोड़ा चीज़ आपको यहाँ पे ब्रीफली बोलूँगा, ठीक है। Okay, let me tell you what is soil diversity. Do you know what is soil diversity? Soil diversity means there are various type of organisms. They are lived under the soil, and they play a crucial role to maintain our ecological balance. So these soil organisms include virus, bacteria, earthworm, nematodes, and various type of insects, including fungus. The example for fungus is mushroom. We commonly use mushroom. Okay. So these organisms, they play various role in our environment.
starting from maintaining our temperature, they maintain organic content of our soils. So how they maintain organic content in our soil? Because these organisms, they play various roles starting from decomposition. We know that जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर में बरी होता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट डिसिपियरिंग होना शुरू होता है। उसका मतलब डिकम्पोजिशन शुरू होता है। ठीक है, जब भी हम लोग का भी जब डेथ होता है तो हम लोग को भी सॉइल के अंदर में बरी किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तब वो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के बॉडी को डिकम्पोज करता है और हम लोग का बॉडी में क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर, दीज जो न्यूट्रिएंट्स है ये हम लोग के बॉडी में होता है। ठीक है, सो दे डिकम्पोज दिस न्यूट्रिएंट्स एंड दे डिपोजिट दिस न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। आफ्टर दैट प्लांट यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, इसके बाद प्लांट का ग्रो होता है, फिर हम लोग को वो फूड मिल जाता है। ठीक है, अभी ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले आपका क्या होता था, अगर हम लोग एक एप्पल को खाता था उसमें जितना न्यूट्रिशन होता था आज उतना नहीं है। आज उसके बराबर हमको 5, 6 या 7, 8 को खाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमको उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है कि जब हम लोग चाइल्डहुड में था तब हम लोग हार्डली सुनता था किसी का घर में कैंसर हुआ है, किसी को डायबिटीज हुआ है या किसी का ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आजकल आप लोग को अपना घर में भी ये सब पेशेंट मिल जाएगा, है कि नहीं? So this is due to lack of nutrition. Our food doesn't have sufficient amount of nutrition, है कि नहीं? तो ये सब प्रॉब्लम आपका हो रहा है। इसके बाद देखो आर्टकॉम, सबको पता है आर्टकॉम के बारे में। ये देखो ये एक पिक्चर है जहाँ पे मैंने डिकम्पोजिशन प्रोसेस को दिखाया। ठीक है, ऊपर में बैक्टीरिया है, मिडिल में फंगस है, देन एकदम लास्ट में आपका नीचे में आर्टकॉम है, देन डिकम्पोज एनी डेड पार्टिकल्स। ठीक है, जब भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है आप लोग देखोगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में क्या होता है, हम लोग का बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स, ये सब होता है ना हम लोग के बॉडी में। तो जब भी हम लोग का डेथ होता है तो ये ऑर्गेनिजम्स ये सब बायोमोलिक्यूल से कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस ये सब निकाल के सॉइल पे डिपॉजिट कर देता है। फिर उसी चीज को प्लांट यूज करके हम लोगों के बॉडी मतलब फूड में वापस उसको रिसाइकल कर देता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स गोइंग ऑन अंडर द सॉइल। ठीक है, फिर ये सब ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिकम्पोजिशन को ही नहीं करता है, इसके अलावा दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, दे मेंटेन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ आवर सॉइल। आपको पता है जब भी सॉइल में वाटर नहीं होता है क्या होता है, सॉइल डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, अगर ये सब ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तो हम लोग का वाटर का जो सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो नीचे चला जाता है। जैसे आप देखो आर्टकॉम को तो मैंने पहले बोला था कि इट इज इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम डिकम्पोजिशन प्रोसेस आर्टकॉम क्या करता है, जब भी वो सॉइल के अंदर में होता है इट बरो इटसेल्फ इनसाइड द सॉइल मेकिंग द सॉइल पोरस। और जब भी बारिश आता है तो द रेन वाटर गोज डाउन, ठीक है नहीं, तो उस सॉइल का क्या होता है तब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। अगर कोई सॉइल में आर्टकॉम नहीं है या ये सब ऑर्गेनिजम्स नहीं होता है तब क्या होता है, द सॉइल बिकम कॉम्पैक्ट और कोई भी कॉम्पैक्ट सॉइल में रेन वाटर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप लोग ईटानगर में भी देखते हो कि फ्लैश फ्लड्स, देन सॉइल इरोजन, ये सब प्रॉब्लम है। और ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, जैसे आर्टकॉम का वन कास्ट होता है, वन कास्ट मतलब वो जो खाने के बाद जो रिलीज करता है कि नहीं, वन कास्ट। तो वन कास्ट क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स को ऐसे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, सॉइल जो है वो टाइट से रहता है और इरोशन उसका नहीं होता है। ठीक है, अगर इरोशन होगा क्योंकि टॉप सॉइल से ही इरोशन होता है एंड टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ आवर अर्थ। और अगर वो इरोशन होगा तो सब मिट्टी कहाँ पे जाएगा, रिवर में जाएगा। तो हम लोग के पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है दे बिकम लाइक उसमें फर्टिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सब ऑर्गेनिज्म सॉइल इरोशन ये सब में भी प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। ठीक है,
हाँ, यहाँ पे 4 पिक्चर ये आप लोग देखते हो आपका घर के आसपास, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर क्या है? एलगी है। एलगी का नाम सुना है? एलगी का क्या इंपॉर्टेंस है बोल सकते हो? डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी? सबने देखा है ना इसको? तो जो फर्स्ट पिक्चर ऊपर का, दिस वन, एलगी। एलगी क्या करता है पता है? एलगी डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सपोज फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। उस एरिया का 50% कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय एलगी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर एलगी एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो उस एरिया का जो 50% कार्बन है वो एनवायरनमेंट में, एयर में ही रहेगा, जिससे क्या होता है? टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये तो देखते हो ना कि हर साल टेम्परेचर बढ़ते जाता है कि नहीं? तो दिस इज ड्यू टू ये एलगी, अगर ये सब नहीं होगा। उसके बाद देखो सेकंड पिक्चर है लाइकेन। सबको पता, देखा है लाइकेन? हम लोग के बिल्डिंग में, वॉल में ऐसे व्हाइट स्पॉट दिखाई देता है, ठीक है। दे आर लाइकेन्स। इनका क्या काम है पता है? क्या काम है बोलो तो कुछ एनी आइडिया? ये पत्थर को मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पत्थर को मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। कोई अगर इनफर्टाइल सॉइल है उसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। और ये सब आएगा, उसके बाद अलग प्लांट्स को उस एरिया में ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि हम लोग इनको पता भी नहीं इनका फंक्शन क्या है। और ये लोग भी धीरे धीरे ड्यू टू पॉल्यूशन ये लोग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो नया से सॉइल कौन बनाएगा, ठीक है। तो इनको वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। इसलिए मैंने पहले बोला था कि हम लोग का आसपास में बहुत सारा चीज है, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, वी हैव टू नो देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तभी जाके हम लोग दूसरा को बोल सकता है कि इसको मत डिस्ट्रॉय करो या इसको प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। देन फोर्थ वन इज फर्ड। फर्ड क्या करता है? इसका पता है कि ऑलमोस्ट 80% स्पीसीज ऑफ फर्ड इज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ, ठीक है। हम लोग खाता है ना इसका सब्जी बना के, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका क्या करता है? ये भी आपका सॉइल का जो नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। देन थर्ड वन इज मॉसेस। मॉस भी क्या करता है? दे हेल्प इन मेकिंग सॉइल, ऐसे कोई भी रॉक से या कोई भी फर्टाइल इनफर्टाइल सॉइल को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So this is how the things going on। ये आपका जो डेड बॉडी है, ऑर्गेनिक बॉडी है, उनसे न्यूट्रिएंट्स निकाल के फिर प्लांट में जाता है, फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस करके उनको न्यूट्रिएंट्स को देता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द न्यूट्रिएंट साइकिल हैपेंस इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी और एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा कि सॉइल डेजर्टिफिकेशन। सॉइल डेजर्टिफिकेशन का कॉजेस क्या क्या है, ठीक है। उसका मेन कॉज है कि आपका फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज वी आर रिमूविंग द ग्रीन कवर ऑफ आवर प्लैनेट, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग ग्रीन कवर को रिमूव कर देगा, सनलाइट डायरेक्टली आएगा सॉइल पे, तो सॉइल के अंदर में जो ऑर्गेनिजम्स है उनका डेथ हो जाता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो हम लोग अगर नेसेसरी नहीं है तो कभी भी हम लोग को डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग एक वर्ड है जैसे को-एक्सटिंक्शन। को-एक्सटिंक्शन सुना है? को-एक्सटिंक्शन मतलब एक जो बड़ा सा, सपोज एक बड़ा प्लांट है, उसके बॉडी में क्या होता है? बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स रहता है कि नहीं। उसमें एल्गी रहता है, बैक्टीरिया रहता है, फंगस रहता है, और भी इंसेक्ट्स बहुत सारा रहता है। अगर आप एक बड़ा गच्छी को काट रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग ए हैबिटेट,
not only tree, but you are also destroying the habits of other organisms. ठीक है, habitat of other organisms. तो इससे क्या होगा, ये पूरा एरिया जो एक गच्छी है उससे अदर ऑर्गेनिजम्स का भी डेथ हो जाता है. मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वायरस अगर एक गच्छी हम लोग काटेंगे तो उसके साथ साथ वो लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इस चीज को बोलता है को एक्सटिंक्शन. ठीक है, अगर हम लोग एक चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे अदर ऑर्गेनिजम्स विल आल्सो गेट अफेक्टेड बाय दिस. ठीक है, इसी को बोलता है को एक्सटिंक्शन. इसलिए हम लोग को अगर एक गच्छी को काटना है अननेसेसरी कभी भी नहीं काटना है. ठीक है ना, और अगर काटने का जरूरत भी है तो इंटर्न हम लोग को और 2-3 प्लांट को लगाना है. ठीक है, ठीक है. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? एनी डाउट? क्लास 12, Raise your hands, okay? please raise your hand if you have any doubt or question. No one. Thank you. क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. यू कैन रेज योर हैंड्स एंड इन बिटवीन में प्ले कार्ड्स हम लोग पास कर देंगे. वी विल टेक सम फोटोज. ओके, आप लोग का विद द प्ले कार्ड, सेव सर प्ले कार्ड्स. ठीक है, एंड अबाउट द लेटर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप लोग मंडे तक लिखेंगे, संडे को लिख देना. एनी पेपर विल डू. इट डजंट हैव टू बी आर्ट पेपर और A4, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. ऑलराइट, क्वेश्चन है तो आप हाथ उठा सकते हो. एनीवन? क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? इसमें किसी को दे रहे हैं, हाँ, सबको नहीं दे रहे हैं. ऑलराइट, वी हैव लिमिटेड नंबर. तो दिस इज लाइक कि आप अगर एक फोटो खींचो तो नेक्स्ट फोटो के लिए किसी और को पास कर सकते हो. विल बी टेकिंग मल्टीपल फोटो. We will also play a song. Okay, this is the same style song, and the visual will be there on the screen. Along with the song, you can read the play cards. आप kindly ensure करना that same style सीखा रहे. ठीक है, बहुत लोग इसको उल्टा लेते हैं, वहीं पर देख लेना. And you can read the play cards ऐसे ऐसे करके 2 हाथ से. Alright, along with the song. ठीक है.
God.